عمدہ نشست رہی. ہم نے تبادلہ خیال کیا جو ملک کی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے اور سندھ کی جو صورتحال ہے اس پر ہم نے تبادلہ خیال کیا. الحمدللہ پچھلے 15-16 ماہ سے ہماری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس پر ہم چل رہے ہیں اور مشکل حالات میں انہوں نے ہمارے ساتھ دست تعاون بڑھایا, ہمارا ساتھ دیا اور ساتھ کھڑے ہیں اور ہر مشکل میں انہوں نے ہمارے پر مہربانی بھی فرمائی اور تعاون بھی کیا. یہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کن مشکل حالات میں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی. جو ہمارے اندرونی معاشی چیلنجز تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ جب حکومت سنبھالی گئی تو ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا اشارہ کس طرف تھا, ان کی ٹریجیکٹری کیا تھی اور ملک کی معاشی حالات کیا تھے. تقریباً دیوالیہ ہونے کو چلے تھے اور بینکرپٹ ہونے والے تھے اور ان حالات میں وزیر اعظم نے اپنی کاوشوں سے, دوست ممالک کے تعاون سے اور پھر IMF کے ساتھ ایک نیگوشیٹڈ وے فارورڈ حاصل کیا اور آج ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف لوٹ چکے ہیں. الحمدللہ آج جتنی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے ورلڈ بینک ہے, چاہے IMF ہے, چاہے ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے, ان کی چاہے ہمارا روپی جو آرٹیفیشلی پیگ تھا اور اس کو مارکیٹ کے ساتھ لنک کیا, چاہے اس کی نوعیت کو دیکھیں تو اس میں بھی 4-5 روپے کا اضافہ ہوا ہے. چاہے اس فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ میں وہ ہو, اسٹاک ایکسچینج میں جو انویسٹمنٹ کی صورتحال ہے, جو فورن انویسٹمنٹس کا اب جو ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے, تو یہ سب پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں اور اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ہم جو کرائسس تھا اس کرائسس سے اللہ کے فضل و کرم سے باہر آ گئے ہیں. اب ہم نے بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا ہے کہ اگلی سٹیج کیا ہے. اس کرائسس پہ جو ایک سٹیبلٹی آئی ہے, ہم نے اس سٹیبلٹی کو گروتھ میں تبدیل کیسے کرنا ہے اور ایسی گروتھ جس سے کہ ہم اپنی عوام جنہوں نے انہیں اور ہمیں منتخب کر کے بھیجا ہے ان کی توقعات اور ضروریات پر ہم کیسے اتر سکتے ہیں. یقیناً جو ووٹ دیتا ہے وہ توقع وابستہ کرتا ہے. ووٹر اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک کا بہت باشعور ہے اور کراچی تو پھر سب سے زیادہ ایک پولیٹیکلی میچور شہر ہے, تو وہ جب حقائق ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو سمجھدار لوگ ہیں. وہ 2+2 کو 4 ہی کہیں گے, 5 نہیں کہیں گے. تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جن مشکلات سے گورنمنٹ 2-4 تھی, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کن مشکلات سے جو PTI اور MQM سندھ میں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اور لوکل گورنمنٹس کی جو کیفیت ہے اور جو ہونی چاہیے تھی وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تفصیلات کا وقت نہیں ہے, لیکن ہم نے آپس میں کھل کر ساری چیزوں کا ایک جائزہ لیا ہے اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں. اور خوشائند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انالیسز اور ہمارا جو انالیسز ہے آن دا لارجر پکچر, چاہے وہ نیشنل پکچر ہے, چاہے وہ اکنامک پکچر ہے, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کی صورتحال ہے, اس پر ہماری جو تھنکنگ ہے اور ہمارا انالیسز ہے وہ ملتا جلتا ہے اور ایک دوسرے کے قریب تر ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ اگلی نشست ہماری وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی ہے جس میں MQM کے دوست بھی ہوں گے اور جو سندھ میں دیگر ہمارے اتحادی ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور مرکز میں جو ہمارے سے تعاون فرما رہے ہیں, ان کے ساتھ انشاءاللہ 5 تاریخ کو وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک نشست ہوگی. اس نشست کے لیے ہم نے آج بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیال کیا ہے تاکہ وہ جو نشست ہے
जो उनकी सरबराही में हो वो मुफीद साबित हो और वो सैर हासिल हो और उस पर हम कुछ ऐसे फैसले कर सकें जिससे कि हम अपने लोगों के लिए आसानी पैदा करें। तो आज बुनियादी तौर पर वो उस पर एक जिसे कहते हैं ना स्पेड वर्क कह लीजिए, होमवर्क कह लीजिए, उसके लिए हमने एक नशिस्त की है। मैं बेहद मशकूर हूँ, हमारी सिंध की क़यादत यहाँ मौजूद है, हमारे कराची के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इन सब की जो इनपुट मिला है उससे कम से कम मैं खासी हद तक एजुकेट हुआ हूँ और मुझे कराची के मामलात और सिंध के मामलात का पहले से ज़्यादा मुझे आगाही हासिल हुई है। तो इंशाअल्लाह आज की नशिस्त को मद्देनज़र रखते हुए अपनी नज़र के सामने रखते हुए इंशाअल्लाह जो इस्लामाबाद में नशिस्त होगी मुझे यकीन है कि वो सूदमंद साबित होगी। मैं हाज़िर भाई आपका और आपके दीगर साथियों का, अल्लामा मिस्टर साहब आपका, मैंने आपको सुबह सुबह ज़हमत दी, आप सबका और पूरी MQM की क़यादत का मैं PTI की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं शाह महमूद और उनकी टीम को हमने यहाँ पे खुशामदीद कहा और शुक्रिया भी अदा करते हैं आप आए। और हमने जैसे कि सबके इल्म में है कि अहम कौमी इशूज़, कौमी मफादात के हवाले से MQM की पॉलिसी बड़े बाज़ है, गैर मशरूत ताउन करते रहे हैं और करते रहेंगे। आज शाह साहब के आने का एक फ़ायदा ये भी हुआ गो कि इनके इल्म में है कि गुज़श्ता 11 साल से सिंध और ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाके माशी दहशतगर्दी का शिकार हैं। सिंध के शहरी इलाकों को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है और फौरी मदद की ज़रूरत है, हर तरह से इखलाकी भी, सियासी भी और कानूनी भी। कराची और सिंध के शहरी इलाके अपने हिस्से से ज़्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं और देने का अज़्म भी रखते हैं। अपने हिस्से के तमाम फ़राइज़ को, बल्कि जो हम पे फ़र्ज़ नहीं है उससे ज़्यादा वाला करते रहे। आज भी सेल्स टैक्स में कराची की कंट्रीब्यूशन 89% है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम अपने हिस्से की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के पाबंद भी हैं और कर भी रहे हैं, और ये हमारा वादा भी है और इरादा भी है। हमारी सिर्फ दरख्वास्त ये रही है कि इस हवाले से जितनी तवज्जो की ज़रूरत है सिंध के शहरी इलाकों को और फौरी तवज्जो की ज़रूरत है, उस पर करम फरमाई की जाए। और जो इस हवाले से हमने सिंध के शहरी इलाकों की आवाम के मसाइल जो कि 30-35 साल उनके साथ गुजार के जो तजर्बा हासिल किया है, उनमें से कुछ मुतालबे आपकी नज़र किए थे और आप लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार बड़ी हद तक सुस्त है। इतनी सुस्त है कि उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता बाज़ औक़ात। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इब्तिदाई मुश्किलात के दिन हुकूमत ने मुझे लगता है कि गुजार लिए हैं, मईशत भी संभलना शुरू हो रही है, कुछ इंडिकेटर्स बता रहे हैं, और ये शहर चलता है तो मुल्क पलता है। शहर को दौड़ाइए ताकि पाकिस्तान की मईशत भी दौड़े, यही आपकी मईशत का इंजन है। और ये मैं पहले भी कह चुके हैं, हम दोबारा दोहरा रहे हैं कि हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं और जमहूरी हुकूमतों के साथ खड़े हैं। सिर्फ दरख्वास्त ये है कि जमहूरी हुकूमतें भी सिंध के शहरी इलाकों को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझते हुए उतनी ही तवज्जो दें जितनी तवज्जो के ये हकदार हैं। और कई मसाइल पे हमने आवाज़ उठाई थी और उस पर बात हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला हम साथ चलते भी रहेंगे और अपनी ताउन के सफ़र को ना सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि इसकी रफ्तार को भी तेज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जमात बड़ी अच्छी इत्तेहादी है, गैर मशरूत हिमायत आपकी जारी रखती है। आप आए हैं, आपने आगाही हासिल की तमाम मामलात में। जहांगीर तरीन भी आए थे, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन MQM के जो मुतालबात हैं पूरे नहीं हो सके। कराची में तहरीक इंसाफ के जो MNA MPs हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। कब तक ये होगा? और दूसरी ये कि आलमी एक्ट पे कोई बात हुई है? जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर है और अपोजिशन के साथ वो काम कर रहे हैं, क्या आप कामयाब हो जाएंगे उसमें तकरीर के हवाले से? देखिए, कराची के जो हमारे MNAs हैं और MPs हैं वो मुल्की हालात से बेखबर नहीं हैं। जो माशी हालात हैं उनकी नज़र में हैं, और जो उन्हें सिंध से तावन हासिल है वो भी मुझसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि सिंध असेंबली का वो हिस्सा हैं। तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए
हमने वे फॉरवर्ड तलाश करना है और करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मकसद पाकिस्तान की बेहतरी है, मकसद कराची की बेहतरी है, मकसद सिंध की बेहतरी है, और चाहे वो इंटीरियर सिंध हो या जो कराची के और सिंध के दीगर जो शहर हैं वो हों। तो एक इंशाअल्लाह एक जामे हिकमत अमली को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, जो आपने कहा कि लेजिस्लेशन होनी है, बिल्कुल हम उस लेजिस्लेशन के पाबंद हैं, हमने बसद एहतराम उसे कबूल किया है। हमें आइन का जो हमारा दायरा इख्तियार है और जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं उस पर हम कल भी वाज़े थे, आज भी वाज़े हैं कि एग्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और वज़ीर आज़म ने जो कदम उठाए वो एग्जेक्टिव फंक्शन के अंदर रहते हुए उठाए, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए उठाए, कानून को सामने रखते हुए उठाए, और अगर मज़ीद कोई एम्बिग्विटीज़ हैं तो उन एम्बिग्विटीज़ को दूर करने के लिए आने वाले वक्तों के लिए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। सवाल है, पहले कचरा, फिर कुत्ता, फिर डंगी दिल, और अब संसार भी हो रहे हैं। ये 18वीं तरमीम कराची वालों पर से कब हटेगी? ये अपने हल्कों में जाते हैं तो बोला जाता है कचरा कब उठेगा, MK वाले जाते हैं बोलते हैं, सिंध हुकूमत कहती है 18वीं तरमीम के तहत आप कोई काम नहीं करा सकते। तो 1.5 साल हो गया कराची के अवाम 18वीं तरमीम का सहीफा कब तक खोलेंगे? इस पे तरमीम क्यों नहीं हो सकती? किबला देखिए, 18वीं तरमीम एक इत्तफाक राय से पास हुई थी और उसके पीछे जो सोच थी वो मुस्बत थी। अब सवाल ये है कि उस पर अमल दरामद कैसा हुआ और कैसा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम ने जो सूबों को अख्तियार दे दिया है, माजी में ऐसा न था, और 7th नेशनल फाइनेंस अवार्ड ने सूबों को जो वसाइल दिए हैं वो पिछले कई दहाइयों में ऐसे न थे। अब सूबों को भी, और सिंध भी एक सूबा है, 4 सूबे हैं, एक इकाई है, सूबों को भी और सिंध की आवाम को भी इसका जायज़ा लेना चाहिए कि 18वीं तरमीम के अख्तियारात के बावजूद 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के वसाइल के बावजूद वो क्या कर सके हैं और क्या नहीं कर सके, ये कराची के लोग और सिंध के लोग मुझसे ज़्यादा समझते हैं, बाशऊर लोग हैं और सियासी समझ रखने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ आए दिन जो कहा जाता था कि जनाब ये हमारे हकूक़ पावाल हो रहे हैं और हमें हक नहीं मिल रहा, वो लोग समझते हैं कि ये जो है ना हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और, तो अब ये स्लोगनेरिंग जो है वो ज़्यादा देर पार रहेगी नहीं। मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम के तहत कोई डेवोल्यूशन का धोखा दिया गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हो गई है सूबों में, इसके लिए ज़रूर कोई हल निकालना चाहिए। असल बात ये है, देखिए मैं करूँ आखिरी, मुझे जहाज़ पकड़ना है, मुझे जाना है, मेरी सुन ले, मैं इन्हीं की बात को देखिए, गुड गवर्नेंस के लिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। डेवोल्यूशन के लिए मरकज़ से तकाज़े किए गए और मरकज़ ने काफ़ी हद तक 7th फाइनेंस अवार्ड में और 7th इसमें अवार्ड में और 18वीं तरमीम के तहत उन तकाज़ों को पूरा कर दिया। अब सवाल ये है, मरकज़ से तकाज़ा किया गया, मरकज़ ने तकाज़े पूरे कर दिए, क्या सूबों ने तकाज़े पूरे किए? क्या सूबों ने ग्रास रूट लेवल पर वो अख्तियारात मुंतकिल किए, वो वसाइल मुंतकिल किए जो उनको उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए, उसी डेवोल्यूशन की स्पिरिट को सामने रखते हुए उन्हें करने थे? मैं समझता हूँ नहीं हो सके, और उस पर हमें बैठकर मजीद बात करनी है। ग्रीन बस कराची में कब चलेगी? वहाँ तो मेट्रो बस चलने वाली है, और क्या बर्फ वाकई पिघल गई जैसा आप फरमा रहे थे? कौन सी ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं? ग्रीन लाइन के दरमियान जो ये दूरियां थी, मेयर साहब भी काफी नाराज। हमारी कभी दूरी नहीं थी, हमारी कभी दूरी नहीं थी। हम अगर दूर होते तो एक दूसरे का साथ न दे रहे होते, दूरी नहीं थी। जब भाई बैठते हैं, बात इम्प्रूवमेंट को सामने रखते हुए आप एक दूसरे से एक मकालमा करते हैं। मकालमे में कई दफ़ा ऊंची नीची बात हो जाती है, लेकिन नीयत
ان کی بھی درست ہے, نیت ہماری بھی درست ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو سندھ کو اور سندھ کے سب سے اہم شہر کو کراچی کو آگے بڑھنا ہوگا. یہ لازم اور ملزوم ہے. شاہ صاحب 162 ارب روپے کی بات ہوئی تھی, 8 ارب روپے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے اب تک کراچی پیکج کے لیے, جس پہ ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس میں کہا کہ جتنے پیسے جو جاری کیے گئے وہ پرانی اسکیموں پہ جو ہے وہ جاری کیے گئے. تو اختلافات تو بالکل آمنے سامنے ہی ہے, اور پھر آپ بیٹھنے آپ کو دکھائی لگتے ہوں گے اختلافات. میں نے کہا آپ نے چشمہ کالا رکھا ہے, آپ نے کالا چشمہ لگا رکھا ہے اور اتنی دھوپ بھی نہیں ہے. ہمیں اختلافات دکھائی نہیں دے رہے. ہم نے ایک دوسرے کو سنا ہے, ایک دوسرے کو سمجھا ہے, اور انشاءاللہ راستہ مزید ایک دوسرے کے لیے بہتر کریں گے. شکریہ. آخری یار میں نے جہاز پکڑنا ہے. پی ٹی آئی حکومت آنے کے بعد جتنے بھی اچھے کام ہوئے, سی پیک, کرتارپور, امریکہ سے تعلقات, ایران سے تعلقات, سعودیہ سے تعلقات, سارے کریڈٹ باجوہ صاحب کو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے کریڈٹ پہ صرف ایک چیز آتی ہے, نواز شریف کا بیرون ملک جانا. کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوال اتنا مناسب نہیں ہے, پر آپ حقدار ہیں سوال کرنے کا, میں تسلیم کرتا ہوں. ہمیشہ جو اچھائی ہوتی ہے یا تنقید ہوتی ہے حکومت وقت پہ ہوتی ہے. تنقید اب حکومت پہ کرتے ہیں اور کریڈٹ حکومت کو نہیں دینا چاہتے. یہ کہاں کی صحافت ہے بھیا؟ یہ صحافت نہیں ہے. میری سن لیجئے نا, نہیں دیکھیے رائے ہے نا, آپ نے سوال کیا جواب لیجئے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے فورن پالیسی میں اہم اقدامات اٹھائے ہیں جی, ماضی سے ہٹ کے اٹھائے ہیں, چاہے کرتارپور ہو, چاہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ریسیٹ کرنے کی بات ہو, چاہے افغانستان کے پیس پروسیس کو بڑھانے کی بات ہو, چاہے سعودی عرب اور ایران کی غلط فہمیوں میں کمی کی کوشش ہو, چاہے کشمیر کا مسئلہ جو 5 دہائیوں سے کھٹائی میں پڑا تھا اس کو اجاگر کرنے کی بات ہو. اللہ کے فضل و کرم سے اس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. تھوڑا سا آپ بھی کر لیں. شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گفتگو کافی مثبت رہی, کراچی اور سندھ کے مسائل پر گفتگو ہوئی ہے.